Good morning, students. Today I am going to tell you a new topic of the writing skill, notice writing. This topic is very important for the both classes 11th as well as 12th. Actually, this topic is the very first question of the writing skill. It contains 4 marks and the word limitation of this topic is 50 words. Okay, now first of all I am going to tell you about what is a notice. क्या कि notice होता क्या है? Usually you observe in a school campus, notice you observe the notice board. Whenever any important information is issued, so first of all you have to assemble near the notice board. So what is a notice? A notice is a written or printed news announcement or information. A notice may contain information about something that has happened or is likely to happen, but actually the main is conditions that is to happen now. It may be a formal announcement of public importance or an advance warning meant for compliance and information. A notice can be about a meeting, an event, an excursion, historical trip, a picnic, or found change of address, anything may be there. I mean to say here that whenever you given any printed announcement, you have to give any information even in school, society or club. The notice is the medium through which we can convey the message to the all. So this topic really plays an important role, especially not for these classes but also for the future. So you must come to know how to write notice, and you usually observe in school campus you usually observe the notice in school campus as well as in the society campus, as you also observe the notice in the newspaper. Okay, now students, first of all I am going to describe about the format of a notice. Okay, format of notice. Then before starting the format of notice, I am going to tell you about parts of a notice. Okay, format. The 3 parts are there. Actually, the 3 parts division has been done according to marks. 1 mark has been selected for the format. अब क्या क्या चीज़ फॉर्मेट में इंक्लूड होती है? फॉर्मेट में इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, club, society, institution, etc. whatever would be there. The word notice, date, caption, writer's name and designation. This thing is included in notice format. If this part is right, you can be given 1 mark for the format. Second, content. If your content is right, content I mean to say this part is called content. कंटेंट इस पार्ट को कहा जाता है. अगर आपका ये पार्ट सही है, कंटेंट सही है, तो इफ़ दिस पार्ट इज़ राइट, इट मस्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, एटसेट्रा. इफ इट इज़ एक्यूरेट, then 2 marks can be given to you. And the last is expression. It refers to the overall information connected to organization, the relevance of the content, as well as the grammatical accuracy and fluency. It means that here, if format is right, no grammatical error has been committed by you, everything is okay, then you can be given 1 mark for that. In such a way, 1 plus 2 plus 1 is equivalent to 4 marks. Okay, before writing notice, what are the things, what are the points that can be kept in mind? First of all, what the thing you have to be keep in your mind? Whenever any notice is there, obviously the name of the organization, institute, club, anything can be given. Obviously, those who are going to publish that year, obviously the name of the institution will be given. So you have to be aware about that. First of all, you have to write the name of the organization in block letters. सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है. ये जो भी इसको पब्लिश करा रहा है उसका नेम होना चाहिए. Second thing, the word notice. In second line, you have to write the word notice. It must be in center. Now the
थर्ड यू टू राइट द डेट ऑफ इशूइंग द नेट नोटिस. नोटिस की डेट लिखनी है, बट इट मस्ट बी इन वेदर इट माइट बी इन अमेरिकन और ब्रिटेन, बोथ में बी देयर, बट यू अडॉप्ट द मेथड ऑफ ब्रिटिश. इट मीन्स 27 मई जो भी आपका है 2020, और या मई 27 ये अमेरिकन पैटर्न पर है, और 27 मई 2020 इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ब्रिटेन. नाउ नेक्स्ट इज हियर date must be written in third line and it must be in left side. Now fourth is heading. Heading means caption. Caption is very important part because it tells about what is notice about. ये किसके बारे में है, ये कैप्शन हेडिंग बताता है. इट मस्ट बी इन 4 to 5 words sufficient must be there. Now the next point is here details of the event like date. It must be included in content. Details of the event like date, किस डेट को प्रोग्राम होना है, टाइमिंग क्या है, वेन्यू मीन्स प्लेस बताना कहाँ होना है प्रोग्राम, ये ड्यूरेशन कितना टाइम पीरियड में होना है, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अलावा जो अदर डिटेल्स हैं उनको आपको इंक्लूड करना है. और लास्ट में आपको सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन को इंक्लूड करना है. whenever signature is there तो name must be in block letters. अगर signature नहीं कर रहे हो तो name would be in running handwriting. And the last you to write designation. Designation means head boy, head girl, editor or secretary of literary club. This called designation. Principal sir, CO sir, PGT, head of the department. तो ये आपका क्या कहलाता है, designation. Up now the main important part is that here in notice writing you have to be aware about the tense, especially present or future tense is used here. Future और present tense का इसमें यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर जो future tense का हम यूज़ करते हैं तो उसमें we have to use obviously सबसे पहले जैसे our school is going to organize, ये प्री प्लान फ्यूचर के लिए होता है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो. विल, शैल, हैज़, हैव, इज़, आर इसका यूज़ कर सकते हो. डोंट यूज़ वॉज, वर, क्योंकि इट शोज द पास्ट टेंस, तो यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट कंसेप्ट, यू हैव टू यूज़ थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, दे, देयर, नेम, ही, शी भी इसमें आता है, बट इट इंक्लूड द अकोमोडेटिव वे. फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन्स आर नॉट यूज्ड. आई, वी, यू इसका यूज़ नहीं होता है, बट इन लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस वी कैन यूज़ इट. लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस में हम आई का यूज़ कर सकते हैं. थर्ड पर्सन में अगर मैं आवर स्कूल कहूँ तो थर्ड पर्सन में आ गया. योर के साथ कुछ और ऐड कर दिया गया तो थर्ड पर्सन में इंक्लूड हो गया. बट इफ़ ऐसे योर सेपरेटली, आवर सेपरेटली, तो our cannot become separately. If for us, you, then it can be included in the first and second person. Or don't forget one thing here, to please keep your notice in a box and adhere to the word limitations. You must be aware about whatever the word limitations are there. Obviously 50 words are the word limitation for notice writing, so you must be aware about that, because if you're not aware about that, the result may be there, your negative marking may be there. Or the last point that is very very important, that here your notice must be on the same page. आपका नोटिस एक ही पेज पर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए हाफ इस पेज पर आया और हाफ इस पेज पर. आपकी पूरी कोशिश रहे नोटिस मस्ट बी इन सेम पेज, अदरवाइज योर 1 mark विल बी डिडक्टेड फॉर दैट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फॉर्मेट and the complete details about that. First of all, you have to assume that any school is there. The name of the school is DAV Public School, and it belongs to New Delhi. Whenever the name of the institution is not being given, then you can use XYZ. But if the name of the school has been given, then you have to write in capital letters. सबसे पहले जो भी क्लब, सोसाइटी, जिसका भी नाम दिया गया है, आप उसका पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. स्कूल का नाम कहाँ है, ये कहाँ से बिलोंग करता है. अगर मैं कहती DAV पब्लिक स्कूल, RK पुरम, न्यू दिल्ली, देन यू टू राइट द होल वन.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल सोसाइटी वट एवर वुड बी देयर इन ब्लॉक लेटर्स in such a way as I wrote. Then having left one line, you can write notice in also in block letters. इनको भी block letters में ही लिखेंगे. Notice must kept in block letters, must be written in block letters. Now the third point, date. I have adopted the British procedure. मैंने पहले 27 मतलब डेट लिखी है, फिर मैंने मंथ लिखा है, फिर मैंने सेशन लिखा है. और अमेरिकन में क्या होता है, पहले मे आता है, पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है. तो यू कैन अडॉप्ट द ब्रिटिश मेथड. देन द फोर्थ इज कैप्शन. कैप्शन में भी इन ब्लॉक लेटर्स और इन अ रनिंग वन, बट इट मस्ट बी लुक अट्रैक्टिव. आपकी जो टॉपिक हो वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए. अब ना टॉपिक इज इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कंटेस्ट. टॉपिक है यहाँ पर इंटर स्कूल, आपका स्पीच कंटेस्ट होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली इंटर स्कूल है, तो many schools are going to participate that year. DV Public School is going to announce that year specially for inter-school declamation contest. Actually, this school is not going to host. अब होस्ट करने वाला कौन है, कैनाल वैली पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये होस्ट करने वाला है. अब नाउ द 2 participants need for this competition, so that's why being the secretary of literary club, you have been asked to write the notice. So how to begin? I hope these 4 points are clear to you. It's a part of a format. Part format में क्या आता है, आपका नेम क्लब का, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर कैप्शन, और फिर फॉर्मेट में आता है आपका सिग्नेचर, और उसके बाद अगर सिग्नेचर है तो नेम कैपिटल लेटर्स में, और लास्ट में डेजिग्नेशन. जो डेजिग्नेशन आपका क्या है, सेक्रेटरी ऑफ लिटरेरी क्लब. अब नाउ इस चीज़ का आपको 1 मार्क मिलेगा. नाउ कम टू द कंटेंट. अब कंटेंट पर आ जाएगा. यू आर ऑब्जर्विंग हियर, आई टोल्ड नाउ हियर, मैंने मेंशन करा हुआ है राइट पेन से कि यहाँ पर ये इसका स्कूल का, फिर नोटिस यहाँ पर है, फिर ये डेट है, फिर ये कैप्शन है. नाउ कंटेंट. अब कंटेंट में जो इंक्लूड करा गया, देखिएगा कंटेंट में आपका टॉपिक क्या है, किसके बारे में, किसके रिगार्डिंग में है, अभी किस डेट को प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे वेन्यू कहाँ होगा, टाइमिंग क्या है, और नंबर पार्टिसिपेंट्स क्या है, और डेट ऑफ सबमिशन कब तक आपको इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है. फर्स्ट, अगर आपको समझ नहीं आए तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर है. दिस इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर 11th and 12th स्टूडेंट्स. अभी इन्फॉर्मेशन 11th and 12th के स्टूडेंट्स के लिए ओनली. तो यू टू यूज पैसिव वॉइस हियर. All the students of classes 11th and 12th are hereby informed that कि सभी स्टूडेंट्स को जो क्लास 11th and 12th से बिलोंग करते हैं उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है. क्या कैनाल वैली पब्लिक स्कूल टैली इज़ गोइंग टू होस्ट. क्या होस्ट करने वाला कौन सा स्कूल है, कैनाल वैली पब्लिक स्कूल. वो होस्ट करने जा रहा है. क्या होस्ट करने जा रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट. यू कैन मस्ट मार्क, कीप इन इन्वर्टेड कॉमास, और यू मस्ट अंडरलाइन, क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट है, ये क्लियर होना चाहिए. इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा, होस्ट करने जा रहा है. कब, ऑन 5th जून. 5th जून को आगे की डेट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 27th में मेंशन करा है, तो आगे की डेट आएगी. कहाँ पर, इन स्कूल ऑडिटोरियम. ये वेन्यू है आपका कि जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा. अब टाइमिंग क्या है, फ्रॉम 9 AM to 11:30 AM. अब आई कैन राइट दिस थिंग इन सच ए वे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, कैनाल वैली पब्लिक स्कूल दिल्ली इज गोइंग टू होस्ट इंटर स्कूल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th and 12th on 5th June in the school auditorium from 9 AM to 11:30 AM. वो आपका एक्टिव फॉर्मेशन में हो गया और ये आपका पैसिव फॉर्मेशन में हो गया. अब यहाँ पर आपने प्रोग्राम क्या उसका भी बता दिया. ये ऑल्सो डिस्क्राइब हियर कि वेन्यू भी बता दिया आपने, टाइमिंग भी बता दिया, डेट भी बता दिया. अब यहाँ पर आता है कि नंबर ऑफ स्कूल्स पार्टिसिपेंट्स. 8 renowned schools would be the part of this contest. इसमें 8 schools participate कर रहे हैं. The students, 2 students from each school. अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स को परमिशन है इसमें, 2 स्टूडेंट्स, यानी कि 16 स्टूडेंट्स में टोटल पार्टिसिपेट करेंगे. कोई 8 स्कूल है यहाँ पर, और 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल. ध्यान रखना, 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल्स नहीं आएगा, ईच स्कूल आएगा. अब यहाँ पर
क्या टॉपिक है, आई हैव नॉट मेंशन द टॉपिक, मेंशन भी कर सकते थे पर यहाँ पे मैंने लिख दिया द टॉपिक विल बी डिस्प्लेड टुमारो, टॉपिक कल डिस्प्ले किया जाएगा. यू आर ऑब्जर्विंग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आर यूज्ड हियर एंड नो फर्स्ट पर्सन हैज बीन यूज्ड हियर. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन इज इन. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर भी आपका थर्ड पर्सन है. देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, को अपना नेम दे सकते हैं. कब तक? बाय 29 में पॉजिटिवली. अब ये यहाँ पर सबमिशन भी हो गया. मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड. अंडरसाइंड का मतलब क्या है कि जो सेक्रेटरी लिटरेरी क्लब है उसको अंडरसाइंड कहा गया है. आप इसको भी नाम दे सकते थे. अगर आपको लिमिटेशन कम हो रही है तो यू कैन राइट एड वन और मोर लाइन फॉर फर्दर क्वेरी कंटेक्ट टू द अंडरसाइंड. लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है. देन इफ यू आर गोइंग टू असाइन देन योर नेम मस्ट बी इन ब्लॉक लेटर्स. अगर आप असाइन सिग्नेचर नहीं कर रहे हो तो रनिंग हैंड राइटिंग में आपका नेम चला जाएगा और नीचे क्या आएगा आपका डेजिग्नेशन. समटाइम्स यू ऑब्जर्व यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू बिगिन. उस कंडीशन में अगर आपको समझ ही नहीं आए तो उस कंडीशन में कैसे बिगिन करोगे. दिस इज टू इन्फॉर्म कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th and 12th दैट कैनाल पब्लिक स्कूल इज गोइंग टू होस्ट. आप इस तरह से भी बिगिन कर सकते हो दिस इज टू इन्फॉर्म से. आई होप यू गॉट माई पॉइंट वेल. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ नोटिस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस आर देयर? First is notice for meeting. So you assume that here you are the head boy, head girl for school and you want to arrange a meeting for all the prefects and all the prefects of the houses. So you can arrange the meeting for the normal meeting may be there. तो आपका क्या होगा? Notice for meeting. अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म वन थिंग मे बी देयर. ये तो स्कूल के लिए था. मान लीजिए अगर क्लब या सोसाइटी के लिए होता तो आप क्या कहते हैं? ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस क्लब. रेजिडेंट्स कहते हैं निवासी को. ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट. अगर मान लीजिएगा रेवाड़ी सिटी के लिए होता तो ऑल द सिटीजन्स ऑफ रेवाड़ी सिटी आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द कंडीशन विल बी चेंज्ड. अब सेकेंड है नोटिस फॉर इवेंट्स लाइक कंपटीशन. जैसे कंपटीशन है तो भी इसके लिए नोटिस लिखा जाता है. कंपटीशन में भी देयर इंटर स्कूल, इंट्रा स्कूल और इंटर हाउस, इसके लिए भी हो सकता है. टूर, कोई टूर जाना हो, कोई ट्रिप जाना हो, कोई एक्सकर्जन जाना हो, कोई कल्चरल एक्टिविटी हो तो यू कैन आल्सो राइट नोटिस. Lost and found, if you lost something so you can also write the notice, but in this lost and found column you can use I, but in other notices you can't use I. You must be aware about that here. Instead of I you can also use undersigned. अगर आप I ना लिखना चाहे तो थर्ड पर्सन के फॉर्म में undersigned भी लिख सकते हो. Next for notice for seminar, workshop, debate and other literary competition. इसके लिए भी notice is written. एंड नोटिस फॉर ईयर चेंज ऑफ नेम. अगर आपको नेम चेंज कराना, अपना रेजिडेंस चेंज होना है, कंपनी का नेम चेंज होना है तो ऑब्वियसली द नोटिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस राइटिंग कंसेप्ट. And the last for notice for appeal and warning. You are observing whenever any type of natural calamities are there. So you can see many type of notice in the newspaper. So you can also write the notice for the school notice board. You can request to the students of the school that they can donate the amount or the books or the clothes or the needy substances for the victims. In such a way, the notice is very useful part for writing skill. It is not only for the syllabus. It can be beneficial for the future because notice you can also learn the things from the newspaper regarding notices. Then I hope having noted these points, having grasped these points, you will be enough capable to write notice writing.